ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਇਲਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 990 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ, 47 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ OPD ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫ੍ਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਚ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। 45 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ, 126 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ। बीजेपी के नेता अमृतसर में दमदमी टकसाल गए थे 6 जून को। ये पहली बार है, बीजेपी के नेता महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं। क्या पहले आज के इशू पे बात कर लीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी। तो नीचे करना अरोड़ा साहब, ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 4.25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਮਿਟਡ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 31 ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, IT ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ईडी की रेड चल रही है सर, 2 जगह पे। सीएम साहब ने ट्वीट किया, वो कह रहे हैं कि हिंदू बिजनेसमैन को टारगेट कर रही है, लेकिन वो बीजेपी पर आरोप लगाया उन्होंने, सीएम साहब ने। हिंदू सिख मत करें, ये गलत चीज है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी जहां पे एक तरफ तो अपने साथियों को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहलाती है, लेकिन आज जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, जो व्यापारी भाई हैं, मोस्ट ऑफ देम फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, उनका जो दमन किया जा रहा है, उनको जो, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो व्यापारी हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हैं, जिस तरीके से दमनकारी नीतियों पे भाजपा उतरी हुई है, ये सच में ये पंजाब को क्या पूरे देश में इसका गलत मैसेज आ रहा है। इससे पूरे का पूरा बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो बैठ रहा है। इससे जो डबल फेज्ड राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो नजर आ रही है और मैं समझता हूँ कि ये हर बीजेपी के नेता तो आपके सामने है जी, जितने अभी तक टारगेट्स हुए हैं सभी के सभी हिंदू बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे बीजेपी का एक जो एंटी हिंदू, एंटी बिजनेसमैन, एंटी व्यापारी, एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट जो चेहरा है वो नंगा हुआ है। इनके
इनके हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश में सिर्फ 2 लोगों को ही भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से, केंद्र सरकार के हिसाब से देश में सिर्फ 2 लोगों को ही बिजनेस करने का अधिकार है, वो है अडानी और अंबानी। बाकी उनके हिसाब से किसी को बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है। बीजेपी नेता दमदमी टकसाल गए थे, पहली बार बीजेपी नेता गए हैं। इवन कांग्रेस अध्यक्ष भी बोल रहे हैं कि पंजाब डार्क डेज से निकला है, इस तरह की बीजेपी डिविसिव पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, इसका जवाब तो बेहतर पंजाब की भारतीय जनता पार्टी है, वो दे, अपना स्टैंड स्पष्ट करे तो बेहतर है। लेकिन इससे एक जो घिनौना चेहरा भारतीय जनता पार्टी का इससे नंगा जो होता है, वो ये होता है कि आज वो सिर्फ और सिर्फ 2027 की इलेक्शन को देखते हुए जिस तरह से हिंदू सिख को पोलराइज करने के में लगी हुई है, सबसे ज्यादा अगर धर्म निरपेक्ष स्टेट, सेकुलर स्टेट कोई है वो पंजाब है, जो इवन आफ्टर डार्क डेज ऑफ टेररिज्म का इतना लंबा दौर देखने के बाद भी यहाँ पे किसी भाईचारे में, धर्म, मजहब, फिरके में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन से पहले अपने स्टैंड से बिल्कुल ऑपोजिट जाके बीजेपी की ये स्टेटमेंट आना, उससे सिर्फ मकसद इनका एक ही है कि किसी भी तरीके से, चाहे गलत हो सही हो, समाज बचे ना बचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चले, इस मकसद से वो अब उस राजनीति पे उतारू हुए, जो कि मैं समझता हूँ कि पंजाब को बांटने का काम है। बीजेपी आई है, टीएमसी के 20 सांसद जो है दूसरे के लिए तैयार हैं, इसको किस तरह से देते हैं घटना? देखिए, हम तो शुरू से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ही काम पकड़ा हुआ है कि कम वोट में किसी भी तरीके से किसी ऑपोजिशन पार्टी को किसी स्टेट में कोई भी हीला वसीला, कोई भी तौर तरीका बरतना पड़े, वो उसको खत्म करने लगी हुई है। पहले ये साथ ही साथ अपने जो इनके अलाइज होते हैं उनको भी खाते हैं, उनको तो अंदर बैठ के खाते हैं, और जिस तरीके की अपनी ईडी सीबीआई के जरिए ये सारी ऑपोजिशन पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए लगे हुए। लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि सारे दिन एक जैसे नहीं होते, ये कभी बारी भारतीय जनता पार्टी की भी आ जाएगी। दयाली जो है आज वारिस पंजाब में शामिल हो गए, किस तरीके से देखते हैं पंजाब की आने वाली सियासत को? नहीं, चलो ये तो उनका अपना डिसीजन है, इसमें मैं तो क्या कह सकता हूँ, जो उनको मैं तो गुड विशेस ही दूंगा। सर, महाराष्ट्र के मंत्री जी ने जो ये स्टेटमेंट दिया, इसको लेकर लगता है कि अपने स्टैंड से भी आपने कहा कि बीजेपी पलट गई है वोटों के लिए, तो ये एकदम से उनको भिंडरा वाले और ये सब अच्छे लगने लगे। मेरे हिसाब से तो आप अगर ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछें, उनके लीडर से पूछे, तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। लेकिन मेरे को जितनी समझ आई है उस बयान से, और आप मीडिया वाले भी, सारा पंजाबी ये समझ रहा है कि आज तक जो स्टैंड था उसके बिल्कुल टोटली ऑपोजिट वो स्टैंड ले रहे हैं। तो इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि वोटें चाहिए वो जैसे मर्जी लो, लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, वो पंजाबी च कहावत है कि अगों भाई जी ने नहीं थी, पिछों कुत्ता चक के ले गया ना। मेरे ख्याल नाल इन्हां कोले जिस तरीके नाल चल रहे ने, ना इन्हां कोले हिंदू भाईचारे दियां, ना सिख भाईचारे दियां, ना दलित समाज दियां, ना ओबीसी दियां, जय जी फिरका प्रस्ती दी राजनीति अज पंजाब दे विच बीजेपी करन दी कोशिश कर रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ? ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਐਮਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਸੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। क्या सिसोदिया साहब भी आए हैं सर इस पूरे मामले को सुलझाने? मोहाली मेयर के इलेक्शन में क्या सिसोदिया साहब को इंटरवीन करना पड़ा? नहीं, किस बारे में? ये मोहाली मेयर को लेकर जो आप हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, कोई भी डिसीजन होता है उसमें सारे के सारे कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं। इसमें सीएम साहब, मैं खुद, हमारे पार्टी के और लोग, और मनीष सिसोदिया जी, क्योंकि वो पार्टी के स्टेट इंचार्ज हैं, उनकी भी इंटरवेंशन रही। सभी सलाह मशवरे के साथ फैसला करते हैं, और इसके बाद डेफिनेटली हम जो सभी जो हमारे एमसीज हैं उनको मिलेंगे, और जैसे सबकी सलाह के साथ जो फैसला सब करेंगे उससे। बादल कह रही है कि 1000 रुपये अभी तक नहीं मिला, अनाउंसमेंट जरूर हो गई है, लेकिन ये बड़ी जल्दी मिलने जा रहा है। हरसिमरत कौर जी को मैं कहूंगा कि बेफिक्र रहो, हमारा एक वादा भी खाली नहीं जाएगा, एक वादा पूरा किया जा रहा है।